is contemporary vernacular architecture. The whole construction is done using mud and bamboo. That we don't use any air conditioning even in summer. It doesn't get heated up. But originally, when we started building it, the concern was west side can heat up. So these bricks have been, this particular structure had been specially designed by Garbed to ensure that the shade falls on each other and it doesn't heat up the inside. So this structure is there everywhere. नहीं है अल्टीमेट किचन, प्रॉब्लम भी नहीं है अल्टीमेट किचन। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बांधवगढ़ के जंगलों में बनी एक स्पेशल किचन आपको दिखाता हूं, जिसकी खासियत क्या है ये हम जानते हैं पीपीएफ के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास जी से। सर वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर इसका जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में बताएं आप थोड़ा। See, this is contemporary vernacular architecture. The whole construction is done using mud and bamboo. And this particular place has a lot of speciality that we don't use any air conditioning even in summer. It doesn't get heated up because of the mud construction. And lighting is also extremely good. And this particular house was built using bamboo from Balaghat, which which was not really good. So rest of the houses have been built with bamboo from Assam. So, but the flooring you can see it's all Katni marble. सर इसका जो एक आपका जो स्टाइल है बनाने का, इसका मटेरियल कौन कौन सा है इसका? इसका मटेरियल जैसे दीवार किस चीज की बनी है इसकी? बहुत खूबसूरत दीवार इज अनबेक्ड ब्रिक, I mean just mud block, mud blocks, and then you can see including all these doors, windows, everything is second hand. And they have been refurbished, including even the furniture that you can see there. It's all second hand furniture. तो ये लगता तो नया सर, एकदम नया लगता है। क्या आपने इसके क्या कौन सी टेक्निक थी इसके लिए? So it has been got our architect Garbid got it refurbished. Even the supplier could not believe, the guy who sold this in the scrap couldn't believe that this is how it looks like today. एक सर पूरा ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में से आपका छत हाइट पे है और ये जंगल में बनी है, तो इसमें जो आपका नीड है, जैसे लाइट का होता है, टेम्परेचर का होता है, ये डिजाइन आपको उसका कंप्लीट करता है? Yeah, absolutely. Yeah, it doesn't get heated up or it doesn't get too cooled up in during winters, or it doesn't get heated up much in summers. So it's really nice for sitting. तो सर एक जैसे हम डिजाइन की बात करते हैं, दीवार बनी है, तो ये जो एक खास तौर से बनाया गया है, ये क्या चीज है और आपके बैम्बूज कैसे स्टेबल रखे आपने? This particular structure, the purpose was that you can see that this is towards the west. West ka heat ज़्यादा होता है. Today, it's quite covered with the Bade Haveli and lots of big trees. But originally, when we started building it, the concern was west side can heat up. So these bricks have been, this particular structure had been specially designed by Garbed to ensure that the shade falls on each other and it doesn't heat up the inside. So this structure is there everywhere. उसका ये बहुत ही एक खास पर्पस है, ये ब्यूटी है, ब्यूटी के साथ एक पर्पस है। या और ये जो सर बैम्बू है, इसको किस तरह से आपने स्टेबल करने के लिए क्या टेक्निक अपनाया, कोई डिजाइन खास तौर से? Yeah, you can see that it's not one bamboo that is supporting, but there are 3 bamboos that are supporting. And this is a little complicated structure because these are columns which are directly supported, and this roof has to get supported through this inside wall. So you can see an elaborate structure created for it, and they're all connected through this tie rods, okay, to transmit the load on each other. सर ये जो विंडोज आपकी काफी है, इसका क्या पर्पस रहा है इसका? See, you can see most of the windows in other houses also, they are very small.
Okay, छोटा रखा especially because Design. we live in an area where the temperatures go very, very high and very, very low. जी. In either case, we don't want to expose the inside to extreme heat or extreme cold. If you have very large windows, it gets either heated up or gets, too cooled down. So we had ensured that the second-hand windows that we are buying, they're all small. And even the houses have been designed in such a way that we make use of the windows and doors that we purchased. It was not that you design and look for doors and windows, but we bought the doors and windows and then designed the houses accordingly. जी. तो ये जो किचन आपने जब बनाया, इसको सोचा था, डिजाइन किया था, तो जंगल के बीच आप रहते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की जो साइट है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट के गजरा गांव में है, जो कि बहुत ही डिस्टेंस बांधवगढ़ के जंगलों में है। तो उस वक्त आपके माइंड में क्या ख्याल था कि ये जो ऐसी हम बनाएंगे किचन, या ये बनते बनते कैसे रहा ये सफर? See, our architects wanted to be quite innovative, जी. like both Garvit and Abhishek, जी. and they wanted something new to be built here. So, and I think I should give full credit to them. It was not that it was my interference much. It was their decision how we go ahead. जी. Yeah. तो चलिए आपको एक किचन का लुक दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती है और इसमें क्या क्या खास चीजें हैं। हाँ। तो इस किचन की एक और बहुत ही खास बात है, वो है इसका डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत ही क्लासी है, बहुत बेहतरीन वुड से बना है। सर, ये कौन सी वुड से बना है और इसका जो डिजाइन है ये बहुत बेहतरीन है, कैसे चूज किया गया इसको? दिस इज ये महागनी वुड का बना हुआ है जी. एंड दिस इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एंशिएंट फर्नीचर जी. एंड दिस हैज बीन this was used earlier by the American embassy. जी. And from there we purchased through an agent. और इसकी जो खूबसूरत सी क्रॉकरी है, ये कौन सा डिजाइन है, कहाँ से लाई गई? क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट लुक देती है। इट्स जस्ट लाइक लुक लाइक ए रॉयल्स, जैसे पुराने ठिकानेदार होते थे राजस्थान में या शाही परिवार होते थे, वो यूज करते थे। और ग्लास भी तांबे का सर? Yes. जी. I mean for health reasons. And this is made of, this is from Jaipur crockery. जी. तो इसमें सर एक बार में कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं फूड? This can accommodate easily around 10 people. और जो ग्लास आपने मेंशन किया हेल्थ रीजन का, ये भी एक वेल थॉट आउट प्लान है? Absolutely. तो आप देखिए किस तरह से जब मेहमान यहाँ पर आते हैं तो बड़ा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फूड को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर कुछ खास गेस्ट जिनका आप जिक्र करना चाहें, जो यहाँ पर आकर ऑर्गेनिक फूड का लुत्फ उठा चुके हैं? तो इधर आए हैं कलेक्टर, कमिश्नर और काफ़ी हमारे दोस्त लोग भी आए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी जी। तो कुछ लोग आए हैं। आई मीन दिस प्लेस वाज यूज्ड बाय मेनी। माय मदर केम एंड माय अंकल, माय सिस्टर, माय ब्रदर। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रिएक्शंस था उनका? तो उनका काफ़ी बहुत अच्छा लगा ये जगह जी। एंड मेरे फ्रेंड्स भी आते रहते हैं जी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है इस किचन की, जो कि कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप खाना खाते हैं। और बनने वाली जगह वो तो आपने वो भी बहुत गजब की है, उसका भी एक आपको टूर करवाते हैं। तो ये है इस किचन का वो पार्ट जहां पर खाना बनता है। तो इस किचन के बारे में ज्यादा खासियतें इसकी बताने के लिए हमारे साथ है आफरीन जहरा, जो जयपुर से आई हैं और प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की किचन को यूज इन्होंने किया है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? पर्सनली अगर कहेंगे, मतलब हम दिल से कह रहे हैं कि हमने वाकई में ऐसा किचन आज से पहले नहीं देखा और हम इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे जब फर्स्ट टाइम हमने इसमें एंट्री की थी। यहाँ पर हमारे पास है 4 बर्नर वाला स्टोव, ताकि हम एक साथ काफी सारा काम कर पाए। हमारे इस हाईटेक किचन में बेकिंग के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रख रखा है। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक बिलोना है, ये है ग्राइंडर। पानी स्टोर करने के लिए, मिनरल वाटर स्टोर करने के लिए हमारे पास है ये मिल्टन का वाटर जग। हमारे पास हर तरह के इक्विपमेंट मिल जाएंगे इस किचन में, लाइक की चॉपर्स, कटर, ये अलग अलग तरह के हैं, काफी एक्सपेरिमेंटल टाइप से।
ये है हमारे किचन का स्टोर। ये स्टोर रूम है। यहाँ पे जो बड़े वाले बर्तन हैं वो हमने यहाँ स्टोर कर रखे हैं। उसके अलावा हमने अपने स्टोर में यहाँ ये सब्जियां, जो सूखी सब्जियां हैं लाइक आलू और ये प्याज वगैरह, इसके अलावा हमारे इन्वर्टर का भी पूरा का पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट है। यहाँ हमने अवन रख रखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक आइटम्स, मतलब हम ये कहेंगे कि इस किचन में हमें किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हो सकती। ये गीजर फैसिलिटी भी है, तो बहुत ठंड में मतलब पानी के ठंडे होने की प्रॉब्लम भी नहीं है। अल्टीमेट किचन। इस हाईटेक किचन को इको फ्रेंडली मेथड से तैयार किया गया है। यहाँ पर हालांकि सारी फैसिलिटीज होते हुए भी इसमें कहीं से भी आपको घुटन महसूस नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन है। ये हमारा टेम्पररी किचन था। ओके, ये अभी तक पूरी 2 बारिश देख चुकी है एंड ये पूरा स्ट्रक्चर बने 3 दिन के अंदर यूजिंग वॉटल एंड डॉप टेक्निक। अंदर बैम्बू का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मिट्टी और काउ डंग का लेप है और लाइम का थोड़ा। ओके, एंड ऊपर रूफ है ये, और नीचे यू कैन सी आपने थोड़ा ब्रिक्स है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जो बनवाया अभिषेक जी ने, एंड इनका ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये 3 दिन में बना हुआ स्ट्रक्चर इतना बारिश में भी कभी इंटैक्ट रहेगी, बट लेकिन इंटैक्ट है काफी। एंड आप देखते हैं ये इधर ही हमारा पूरा खाना बनती थी एक जमाने पे, पर 1.5 साल तक, और अभी करंटली इसको हम स्टोर रूम करके यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये किचन आपको पसंद आया है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आप इस किचन में आकर खाना खाना चाहते हैं, लंच या डिनर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की साइट को। और ये साइट है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांव गजराह में। और हमारे बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, प्रकृतिप्रेरणा.org। इस वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो आपको हमारे बारे में पूरी चीजें हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से लेकर हमारा मिशन क्या है, हम जंगल में क्यों है, और ये रसोई घर जंगल में क्यों बनाया गया है, ये तमाम तरह के आपके जो सवाल है उनका जवाब मिलेगा प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की वेबसाइट पर। तो उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।